سو اب وہ یہ بیٹی کاٹن، اس کے اوپر پھر میں نے جب ہم نے ریسرچ شروع کی کہ یہ کیا چکر ہے، تو پتہ یہ لگا کہ بیٹی جو ہے یہ سوائل بورن بیکٹیریا ہے. یہ تو زمین کے اندر ہے بیکٹیریا جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے. ایک تو پروین کے مائکروبز ہیں نا کہ جو خوراک دیتے ہیں، اور ایک پروٹیکشن والے مائکروبز رہتے ہیں جس میں بیٹی، اور بیٹی کا جو بیکٹیریا اس کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں، اور ان کو ہر جو قسم بیٹی کی ہے وہ ڈفرنٹ قسم کے انسیکٹ کو ٹارگٹ کرتی ہے. بیٹی کی کچھ قسمیں بال ورمز کو اٹیک کرتی ہیں، کچھ سکنگ انسیکٹ کو اٹیک کرتی ہیں، کچھ فلائز کو، باکس کو، بیٹلز کو، ہر ڈفرنٹ قسم کے، اور پھر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو کاٹن کمپنیز یا جو سیڈ کمپنی سیڈ بناتی ہیں اس میں ایک ہی جین ڈالتی ہیں بیکٹیریا کا، جس کی وجہ سے یہ کیا ہوا کہ وہ جین جو تھا وہ امیون ہو گیا. یعنی کہ اس جین کی پنک بال ورم کا اس دفعہ بہت زیادہ نقصان، 2-3 سال پہلے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اور اس سال انڈیا میں کاٹن کا بہت زیادہ نقصان ہوا بال ورم کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ہی ٹائپ کا انزائم تھا جو بیٹی تھا، اور وہ اس سے جو بال ورم تھا اس نے اپنے آپ کو امیون کر دیا. اسپرے انہوں نے کیا نہیں، سارا بال ورم جو پنک بال ورم کھا گیا ان کو. تو جب ہم سوائل کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو پھر بیکٹیریا جو ہے وہ جو امیون سسٹم ہے کیڑے کے اندر وہ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتا. ڈفرینٹ جس طرح یہ نہیں ہے آپ یہ اپنا کوورڈ فرض کیا شکلیں بدل کے آ رہا ہے، تو یہ پھر مائکروب جو ہیں یہ اس طرح شکل بدل کے یہ اس لاروی کو، تاکہ یہ امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو نہ کرے. تو یہ ایک میں سٹوری بتا رہا تھا آپ کو. سو دس ہاؤ اٹ از. تو جب ہم بیٹی جو سوائل کے اندر انزائمس ہیں اس کو جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ ہر قسم کے پلانٹ پروٹیکشن، اس لیے پھر ہمیں کسی قسم کی اسپرے کی ضرورت نہیں پڑتی. سو بیٹی makes toxins that target insects larvae when eaten. In their gut, the toxins are activated, which breaks down their gut, and the insects die within few hours of infection and starvation. اب یہ جو جب پودے کو کوئی چیز کھانے کی کوشش کرتی ہے تو ان کے معدے میں وہ پودے کا حصہ جاتا ہے، تو اندر وہ ٹاکسن جو ہیں وہ ان کے گٹ کو، یعنی کہ ان کے معدے کو جو انسیکٹ ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور وہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ کھا نہیں سکتے کوئی چیز، اور پھر وہ بھوک سے مر جاتے ہیں 3-4 گھنٹے کے اندر. سو یہ ہے قدرتی نظام پودوں کی حفاظت کرنے کا. اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر پریڈیٹرز اتنے رکھے ہوئے ہیں. آپ یہ سب ہے کہ ایک اگر برا انسیکٹ ہے، یعنی کہ نقصان پہنچانے والا انسیکٹ ہے، اس کے اوپر 1700 پریڈیٹرز ہیں. کیونکہ جو برا انسیکٹ ہے وہ اسکیونجر ہے. مثلا اوپر ہم پرندے دیکھو، پرندوں میں کتنے ہزار پرندوں کے بعد ایک ایسا پرندہ آتا ہے جو پرندوں کو کھانے والا پرندہ ہے، جس کو اسکیونجر کہتے ہیں. ذرا کاؤنٹ کرو، ہزاروں پرندوں کے بعد ایک کو گر جائے گی، یا ایک کوئی باز آ جائے گا، یا کوئی اس طرح کا چیز، ہزاروں کے بعد. سو اسی طریقے سے سوائل کے اندر یا اسی طریقے سے پودے کے اوپر جو تعداد ہوتی ہے اچھے انسیکٹ کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو نقصان پہنچانے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. سو اگینسٹ ایوری پلانٹ پیسٹ دیر آر 1700 predators. When natural protection system is in work, VT, GMO seed and pesticides are not required. So جب آپ کا سوائل سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے تو پھر کسی بھی بیٹی کاٹن کی یا بیٹی میز کی یا بیٹی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ فارمرز بیٹھے ہوں گے، کئی سال سے انہوں نے اسپرے نہیں کی، کئی سال سے اسپرے نہیں کی. ہمارے لیے جو ایز اے فارمر 4-5 انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو جن کو مینیج کرنا مشکل ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ اندر گھس جاتے ہیں. اور مثلا پنک بال ورم میں تو ٹنڈے کے اندر چلا گیا تو پھر ان کو مارا کیسے، اس کے اوپر تو اسپرے جائے گی نہیں، اثر ہی نہیں کرے گی.
इसी तरीके से स्टेम बोरर है, गन्ने का है या मक्की का है, या आपकी फ्रूट फ्लाई है जिसने फ्रूट के अंदर अंडे इंजेक्ट कर दिए और वो तोड़ के चली गई। अब अंडे जो हैं वो अंदर उसने लार्वा बना, अंदर ही खाते रहे वो था। अब इनको कैसे मारेंगे? सो ये वो 4 इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं, इनको मैनेज करना ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली फर्स्ट क्रॉप में जब अभी हमारा सॉइल सिस्टम ठीक नहीं होता। इसलिए मक्की ख़ास तौर पे, क्योंकि इनका रिवाइवल का चांस कोई नहीं। जिस टिंडे में पिंक बॉलवर्म चला गया तो टिंडा चला गया, ज़ाया हो गया, हमारे हाथ से निकल गया। इसी तरीके से जिस कोंपल में मक्की की पौधे की जिस कोंपल में अंडा चला गया स्टेम बोरर का, वो पौधा गया हमारा, उसको हम नहीं रोक सकते। उसकी वजह यह है कि उसने जाके कोंपल खानी है और पौधा मर जाना है, और ये साइड से शाख नहीं निकाल सकता। गन्ना फिर भी निकाल लेता है, गन्ने का इन मैनी केसेस फ़ायदा हो जाता है। अगर स्टेम बोरर आ जाए गन्ने के ऊपर तो मेन शाख उसने खा ली, साइड से चूँकि उसकी शूट्स निकलती हैं और टिल्डिंग ज़्यादा होगी, वो फ़ायदा हो गया। लेकिन मक्की को नहीं हो सकता। बॉलवर्म को या पिंक बॉलवर्म है वो नुकसान बहुत करता है, मक्की का स्टेम बोरर बहुत नुकसान करता है, या फिर फ्रूट फ्लाई बहुत नुकसान करती है। लेकिन जहाँ पे भी पिकनिक है वहाँ पे ये चीज़ें करीबी आर्द गिर्द के सारे बागात भरे पड़े हैं, क्रॉप्स भरी पड़ी हैं, लेकिन उस पर नहीं है। अब इंडिया में आपने कई काश्तकारों से सुना होगा कि मैं पिकनिक पे था तो मेरे तो कोई बॉलवर्म का अटैक नहीं हुआ, और जो इर्द गिर्द के सारे फार्मर्स उनकी तबाह बर्बाद हो गई सारी फसल। तो ये है स्ट्रेंथ हमारे इस कुदरती निज़ाम की। यही फ्रूट फ्लाई की मैं अभी बात कर रहा था, ये मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया है इसको। जी, फ्रूट फ्लाई जनाब, जब आप पिकनिक पे आ जाएंगे तो फ्रूट फ्लाई क्या बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके पौधों का, आपके फ्रूट का, आपके हर चीज़ का। उसकी वजूहत कई हैं। एक तो जब पौधे को बैलेंस डाइट, बैलेंस तरीका मिलता है तो फल बहुत ही सेहतमंद, और उसकी जो स्किन होती है बहुत सख्त हो जाती है, और उसमें जो फ्रूट फ्लाई है वो डांगी नहीं मार सकती। और दूसरा जो ज़मीन के नीचे हयात हैं, यानी कि अगर किसी फ्रूट फ्लाई का दाव लग गया, जो कमज़ोर पौधा है, या कि साथ वाले किसी और के बाद से फ्रूट फ्लाई आके कुछ हमला करती है या कुछ करती है, तो अगर 1-8% फ्रूट के ऊपर कोई डैमेज होता है तो फ्रूट के अंदर वो अंडे देती है। अंडे जो जिस फ्रूट में देती है तो फ्रूट उसमें से सूंडी निकलती है, और वो जो है वो अंदर से खाना शुरू कर देती है। और जब बड़ा लार्वा होता है तो फिर फ्रूट नीचे गिर जाता है। जब फ्रूट नीचे गिरता है तो फिर नीचे अल्लाह ताला ने शिकारी बैठाए हुए हैं बहुत सारी किस्मों के, जिन्होंने उन लार्वास को, उन सूंडियों को खाना होता है जो उस फ्रूट के अंदर है, और उससे फिर यह है कि जनरेशन ख़त्म हो जाती है, जनरेशन गैप आ जाता है। सो पहली जो फसल होगी आपकी, उसमें 1-2% चांसेस हैं कि फ्रूट फ्लाई आए, लेकिन दूसरी फसल और तीसरी फसल के बाद तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इसके बहुत सारे जो हैं वो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं हमारे यहाँ, और उसमें आप बशर रियाज साहब से बात कर लें टोबाटेक टाइम में, उनको विज़िट कर लें और उनके इर्द गिर्द के बागात देखें और उनका अपना बाग देखें, तो आपको पता चलेगा कि फ्रूट फ्लाई जो है उसने उस बाग को जो पिकनिक के ऊपर है उसका कुछ नहीं बगाड़ा, और इर्द गिर्द के बागात जो हैं उसमें काफ़ी डैमेज नज़र आएगा आपको। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी इजाज़त से कि जब मैंने मुबश्शिर रियाज साहब का बाग विज़िट किया था तो उसमें ना सिर्फ जो आप ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन पे जो पहरेदार कह रहे हैं, बाग के पौधे के ऊपर भी हज़ारों किस्म के फ्रेंडली कीड़े उड़ भी रहे थे, और भाग दौड़ भी, चूंटियाँ कुछ किस्म की थीं जो ऊपर चढ़ उतर रही थीं, और जो भी चीज़ उनको नज़र आती थी मुखालिफ पौधे के, वो ख़ुद कोई नुकसान नहीं कर रही थी, लेकिन जो भी कोई ऐसा मेरा ख्याल है फ्रूट फ्लाई और कोई चीज़ आती होगी जो नुकसानदेह कीड़े हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो पूरे प्लांट के ऊपर एक फ़ौज फिर रही थी। वो भी एक फ़ौज नहीं सर, 5-6 किस्म की फ़ौजें फिर रही थी प्लांट के ऊपर।
हाँ, ये जो साहब थे ये काफ़ी लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हमारे साथ मुंसलिक हैं जो पीएचडी वगैरह के थीसिस वगैरह लिख रहे हैं। तो एक साहब थे उनको मैंने ख़ास तौर पे भेजा ये स्टडी करने के लिए कि भाई मुझे साइंटिफिकली वजह बताओ कि इर्द गिर्द के बागात में फ्रूट फ्लाई क्यों है और इस बाग में क्यों नहीं है। हमें कुछ सली बख्श जवाब तो हो ना, हमारे पास को पूछे तो क्या इसका जवाब है। तो फिर उसने ये आके और फिर इसमें मुबशर रियाज साहब ने जो बताया वो एक बड़ी आई ओपनिंग थी। उसने कहा जी कि जो खादों वाला बाग है साथ वाला हमारा, उसकी स्मेल डिफरेंट है फ्रूट की, और जो पिकनिक का फ्रूट है उसकी स्मेल ही डिफरेंट है और उसकी स्किन डिफरेंट है। यानी कि हमारा जो पिकनिक का फल है उसके जो ऊपर स्किन है उसकी किन्नों की या माल्टे की, वो ज़्यादा सख्त और स्ट्रॉन्ग है, उसमें वो डांगी नहीं मार सकती। और जो खादों वाला है वो नरम है, फुलफुला जाए उसमें जनाब डंग मार के चली जाती है उसको। और जो पिकनिक वाला है उसका उनको शायद अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं उसको, रिपीलियंट उसमें डाला हुआ है जो रिपेल करता है इंसेक्ट्स को, और उसको उनको स्मेल ही नहीं अच्छी लगती, वो उधर नहीं आते। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये सुने ज़रा। मैं इसमें एक और बात का इजाफा कर दूं कि जो फ्रूट है उसको अगर हम, जो किन्नू का फ्रूट है उसको अगर हम ऐसे नाखून लगा के थोड़ा सा उसकी खुशबू लेने की कोशिश करें तो उसकी खुशबू बड़ी हेल्दी सी और बड़ी अच्छी खुशबू आती है, जबकि जिनमें खादें डली हुई हैं उनकी खुशबू अलग है, वो इस जैसी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि फ्रूट फ्लाई शायद उसको वो खुशबू भी अपनी तरफ खींचती है जो खादों वाला किन्नू है या कोई और फल है, वो उस खुशबू पे भी शायद जाती होगी। तो क्योंकि बाग के इस साइड पे एक दोस्त है उसका बिल्कुल इस साइड पे आम काश्तकारी है, वहाँ वो अटैक कर रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे दूसरा बाग है हमारे वाला, तो उस पे वो अटैक नहीं कर रही। इसका मतलब है कि वो उसको वो स्मेल भी अच्छी नहीं लगती जिस स्मेल पे वो जाती है या अट्रैक्ट होती है। सो ये आपने जो कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ से बात सुन ली। जी बिल्कुल। आप अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कल इमरान का फ़ोन आया था कोई डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही है। डिज़ीज़ एक्चुअली नहीं है, इस सीज़न में आती है फ्रूट फ्लाई, जो फ्रूट को पंक्चर करती है और फ्रूट सब्सिक्वेंटली गिर जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो हम डियाना डैम जो है वो स्प्रे करवाते हैं, उसको भी मैंने यही कहा है, लेकिन उसने ये कहा है कि जी हम जब करते हैं तो चूँकि गंद बहुत ज़्यादा है तो जो फ्लाई है वो उसको अल्टरनेट हैबिटेट मिल जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे चली जाती है, यानी जो वहाँ पे घास फूस उगी हुई है, और थोड़े अरसे बाद फिर वो प्लांट पे आ जाती है। तो जब तक हम अल्टरनेट हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम फंगस और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्प्रे हम करेंगे, वो बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए वो कंट्रोल देती है, एक दिन के लिए, उसके बाद 24 आवर्स के लिए, उसके बाद फिर से वो काम शुरू हो जाता है। तो मुझे तो अभी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमने मल्च को भी मेंटेन करना है, उसके साथ साथ जो है हमने फंगस से भी फाइट करना है और फ्रूट फ्लाई से भी। तो मल्च इस वक्त अल्टरनेट हैबिटेट का काम कर रही है। तो मेरी समझ में इस वक्त नहीं आता कि हम इसको कैसे करें। स्प्रे करवाने हैं तो वो तो खर्चा जो है हम चढ़ा लेंगे अपने ऊपर। तो जब तक सफाई नहीं होगी तो मैं तो कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता। तो कोई आपके जहन में कोई बात है या जिन लोगों ने आपको मल्च रिकमेंड की है मे बी कि वो कोई कंट्रोल मेजर्स हमें बता सकें, उनसे रब्ता कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये बंदा भेजा, उनका बाग ट्रांसफर कराया। तो ये जो
सिट्रस का जो, यानी कि मैंने कहा ना कि मुंशी जो होते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं, उसने ये तस्वीर बना के भेज दी। अब शाह साहब ने क्या किया कि उनका जो रेगुलर आने वाला एक्सटेंशन सर्विस का बंदा था, उसको कहा यार देखो क्या है चक्कर, तो उसने ये उसकी ये रिकमेंडेशन थी। अब ये उसने मल्च के पीछे पड़ गया, क्योंकि मल्च से उसको पता है कि ये तो निज़ाम ही बदल गया, तो ये तो हमारी दवाई पेस्टिसाइड कोई चीज़ बिके नहीं, मेरे जेब में कमीशन कहाँ से आएगा। हालांकि ये सनबर्न है, ये इसका कोई तल्लक ही नहीं है उससे फ्रूट फ्लाई से। ये जो एक्सपोज साइड होती है सन की तरफ, उसके ऊपर ये आता है, और वो भी उस प्लांट में आता है जो कन्वेंशनल तरीके से होता है। अब पिकनिक पे जाते हैं तो ये भी नहीं होता। सो ये उसकी, मैं ये देखो ना ज़रा फ़र्क देखें दोनों, नीचे पिकनिक का फ्रूट है और ऊपर जो है उसकी ज़रा शक्ल देखें आप, उसकी स्किन की स्ट्रेंथ देखें आपकी, उसका कलर देखें आप उसका। सो दिस इज हाउ लो जी, आज का हम सेशन क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल में सब लोग थक गए हैं, और जो 15-20 मिनट हमारे पास हैं, हम कोई क्वेश्चन आंसर है तो उनको